السلام علیکم احباب، ٹیک فارمنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان گھر میں مرغیاں پالنا۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے مرغ بانی کیا ہے۔ مرغی کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پرندے کے طور پر پیدا کیا ہے۔ آزاد گھوم کر دانا چگنا اس کی عادت ہے اور اس طرح وہ اپنی غذائی ضروریات پوری کرتی ہے، لیکن دور حاضر میں اس کی طلب میں بے حد اضافہ ہوا ہے اور اس کو باقاعدہ ایک صنعت کا درجہ مل گیا ہے۔ نمبر 2 پہ پوائنٹ آتا ہے گھر میں مرغیاں پالنا۔ زراعت کو ہمارے ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ ہمارے کسان گھریلو کاروبار اور غلہ بانی سے جڑے رہتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی انسانی ضروریات کو دیکھتے ہوئے مرغ بانی ایک باقاعدہ صنعت کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ مرغ بانی گوشت اور انڈوں کی ضروریات پوری کرنے میں مدد کر رہی ہے۔ نمبر 3 پہ پوائنٹ آتا ہے گھریلو مرغ بانی کے فوائد۔ نمبر 1، گھریلو مرغ بانی سے آپ اپنے گھر کے گوشت اور انڈوں کی ضروریات سستے داموں پوری کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے چونکہ چھوٹے پیمانے پر مرغ بانی آپ کو اپنی نگرانی میں کرنا پڑتی ہے، اس لیے آپ مختلف نقصانات مثلا انڈوں اور پرندوں کی چوری، خوراک اور دیگر نقصانات سے بچ کر منافع کی زیادہ شرح حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 پہ آتا ہے مرغیاں چونکہ گھروں کے اندر ہی زیادہ تر رہتی ہیں، اسی لیے باہر سے آنے والی بیماریوں سے بچ جاتی ہیں۔ نمبر 4 پہ آتا ہے گھریلو مرغ بانی سے آپ کم اخراجات کر کے زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 5 پہ آتا ہے گھریلو مرغ بانی سے خاندان کے افراد کو صحت بخش گوشت اور انڈے دستیاب ہوتے ہیں۔ ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے مرغیاں پالنے کے درج ذیل باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، اعلیٰ اور معیاری نسل کی مرغیاں پالی جائیں، جن میں انڈوں کے لیے بلیک آسٹرالوٹ اور روڈ آئی لینڈ مرغی سب سے بہتر ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے متوازن اور وافر مقدار میں خوراک مہیا کی جائے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے جگہ کا مناسب انتخاب اور ڈربہ کی بناوٹ پر خاص دھیان دیا جائے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے حفاظتی ٹیکہ جات اور بروقت علاج معالجہ پر خصوصی توجہ دی جائے۔ نمبر 5، انڈوں یا مرغیوں کی فروخت کے لیے مناسب منڈی تلاش کی جائے۔ نمبر 5 پہ ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے عمارت یا پولٹری شیڈ۔ رہائشی جگہ انڈے دینے والی مرغیوں کے لیے 2 سے 2.5 مربع فٹ اور گوشت پیدا کرنے والی مرغیوں کے لیے 1 مربع فٹ درکار ہے۔ اس میں یہ احتیاط برتی جائے کہ اس کی تعمیر میں زیادہ سرمایہ خرچ نہ ہو۔ شیڈ کی چھت ایسی ہو جس میں دھوپ اندر داخل نہ ہو سکے اور بارش کی بوچھار سے پرندے محفوظ رہیں، اس لیے موزوں شیڈ کی لمبائی شرقاً غرباً اور چوڑائی شمالاً جنوباً ہونی چاہیے۔ شیڈ کا فرش پختہ ہو جس کو آسانی سے صاف رکھا جا سکے اور بوقت ضرورت دھویا جا سکے، اور اس قدر ہونی چاہیے کہ شیڈ کی صفائی تسلی بخش کی جا سکے۔ لیکن اگر تھوڑی تعداد میں مرغیاں رکھنا مقصود ہوں تو ایک لکڑی یا لوہے کا ڈربہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس ڈربے کو کسی سایہ دار جگہ میں رکھا جائے جہاں جنگلی پرندوں اور دھوپ سے محفوظ رہے۔ ڈربے کی صفائی پر خاص توجہ دی جائے۔ ڈربے کے نیچے پہیے لگا دیں تو اس طرح اسے گرمیوں میں سایہ اور سردیوں میں دھوپ میں آسانی سے رکھا جا سکے۔ نمبر 6 پہ ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے مرغیوں کے لیے برتن۔ مرغیوں کی بہترین نشو و نما کے لیے دانے اور پانی کے برتن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان برتنوں کے استعمال سے شیڈ میں صفائی رہتی ہے اور خوراک کے ضیاع میں خاصی کمی رہتی ہے۔ چوزوں اور بڑی عمر کی مرغیوں کے لیے علیحدہ سائز کے برتن استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، لمبے نالی نما برتن۔ یہ برتن 1 دن تا 5 دن سے 5 ہفتہ کی عمر کے چوزوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کے اوپر ایک پھرکی لگی ہوتی ہے جو کہ چوزوں کو خوراک ضائع کرنے سے روکتی ہے۔ دیہاتوں میں مٹی کی کنالی بھی اس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ مٹی کے لمبے برتن بھی بنوائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے ڈول نما برتن۔ یہ برتن 5 ہفتے کی عمر سے لے کر بلوغت تک مرغیوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کی زمین سے اونچائی کو مرغیوں کی عمر کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ ان برتنوں میں خوراک خود بخود مرغیوں کی ضرورت کے مطابق ایک جیسی حالت میں ملتی رہتی ہے۔ دیہات میں گھی کے خالی ڈبے اور مٹی کی کنالی کی مدد سے برتن تیار کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 3 پہ آتا ہے پانی پینے کے لیے برتن۔ ان برتنوں کے استعمال سے پرندوں کو صاف اور تازہ پانی ملتا ہے۔ ان کی بناوٹ ایک جیسی ہوتی ہے، صرف عمر کے لحاظ سے سائز میں فرق پڑ جاتا ہے۔ شروع میں 1/4 گیلن والا برتن استعمال کیا جاتا ہے اور 1 ماہ کی عمر کے بعد
2 गैलन वाला बर्तन इस्तेमाल किया जाता है। इसकी फर्श से ऊंचाई जिस्म के मुताबिक रखी जाती है। एक 1/4 गैलन वाला बर्तन 25 चूजों के लिए काफी है और 2 गैलन वाला बर्तन 30 मुर्गियों के लिए मुनासिब रहता है। देहात में घी के डब्बे और मिट्टी की कनाली से बर्तन तैयार किए जा सकते हैं। नंबर 7 पे आता है अंडे देने वाले घोंसले की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। इसमें 1.5 फुट बाय आधा फुट के खाने बने होते हैं। एक घोंसला 5 मुर्गियों के लिए काफी होता है। इनके इस्तेमाल से एक तो अंडे टूटने से महफूज रहते हैं, दूसरा अंडे गंदे होने से बच जाते हैं। अगर अंडे थोड़े वक्फे के बाद यानी दिन में 3-4 मरतबा इकट्ठे कर लिए जाएं तो मुर्गियों को कुड़क होने से बचाया जा सकता है और अंडे भी गंदे नहीं होते। चूजे निकलवाना, हैच करवाना। अंडों से चूजे 2 तरीके से निकलवाए जा सकते हैं। एक होता है कुदरती तरीका और दूसरा होता है मसनूई। बिहार में कुदरती तरीके से चूजे निकलवाए जाते हैं, इसलिए कुड़क मुर्गी की जरूरत होती है। इसकी पहचान दर्ज झैल बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, कुड़क मुर्गी मुस्तकिल मजाज हो और इसको पहले चूजे निकलवाने के लिए इस्तेमाल किया गया हो तो बेहतर है। कुड़क मुर्गी सेहतमंद होनी चाहिए और चीचड़ों और जूनों से पाक होनी चाहिए। कुड़क मुर्गी को मदाफती टीका जात लगे हुए होने चाहिए ताकि चूजों को बीमारी न लग जाए। साफ सुथरी, सेहतमंद और अच्छी जिसामत की मुर्गी अंडों को सही तौर पर घुमा सकेगी और मुनासिब दर्जा हरारत मुहैया कर सकेगी। एक मुर्गी के नीचे 1.5 दर्जन से ज्यादा अंडे ना रखें। कुड़क मुर्गी को दिन में 2 दफा अंडों से अलग कर दें ताकि वो दाना पानी खा पी सके और पेट वगैरह खारिज कर सके। कुड़क मुर्गी को मुतवाज़न और हजम शुदा खुराक देनी चाहिए ताकि उसकी सेहत बरकरार रह सके। आखिरी 2-3 दिन में कुड़क मुर्गी को थोड़े थोड़े वक्फे के बाद अंडों से अलग करना चाहिए ताकि वो ज्यादा पानी के इस्तेमाल से अंडों को ज्यादा नमी फराहम कर सके और चूजों के निकलने में आसानी हो सके। चूजे निकलवाने का मौसम। चूजे ऐसे मौसम में निकलवाए जाएं जिसमें ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो ताकि चूजे मौसम की शिद्दत से महफूज रह सकें और उनकी मुनासिब हिफाजत और देखभाल हो सके। अंडों का इंतखाब। अंडे ऐसी मुर्गियों से हासिल किए जाएं जिनके गोल और मुर्ग मौजूद हों। अंडे साफ सुथरे और गलाजत से पाक हों। इन पर किसी किस्म की गंदगी मौजूद ना हो। दरमियाना साइज के अंडों से ज्यादा चूजे हासिल किए जा सकते हैं। अंडों का छिलका शिकस्ता ना हो। 1 हफ्ते से ज्यादा मुद्दत के लिए जहीरा ना किया जाए। अंडे देने वाली मुर्गी की पहचान। घरों में रखने के लिए बाज़ औक़ात अंडे देने वाली मुर्गियां खरीदनी पड़ती हैं या फिर घर में रखी हुई मुर्गियों में ऐसी मुर्गियां छांटना पड़ती हैं जो अंडे नहीं दे रही होती। अंडे देने वाली मुर्गी की चंद अलामात। कलगी का सुर्ख मुलायम और नमदार होना, चोंच और टांगे सफेद होना, आंखें चमकदार सुर्ख होना, पेट नरम और बड़ा होना, पैरों की हड्डियों का दरमियानी फासला 2-3 अंगुष्ठ होना और पेट और पैर की हड्डियों का दरमियानी फासला 4 अंगुष्ठ होना। मस्करा वाला मुर्गी में अगर यह खसूसियात ना हो तो मुर्गी अंडे नहीं दे रही होगी। ऐसी मुर्गियां रखने से हवा महा खुराक का नुकसान होता है, लिहाजा इनको ज़बह करके इस्तेमाल कर लेना या फरोख्त कर देना चाहिए। पैदावार के लिहाज से देसी और बेहतर सलाहियत की हामिल मुर्गियों का तकाबली जायजा। देसी मुर्गियां देर से सन्न बलोगत को पहुंचती हैं। तकरीबन 6 से 6.5 माह की उम्र में अंडे देती हैं। सालाना तकरीबन 200 से 300 अंडे देती हैं। ऑस्ट्रेलोप या रोड आइलैंड, इनमें कुड़कपन होता है। बेहतर सलाहियत की हामिल मुर्गियां जल्द सुन बलोगत को पहुंचती हैं। तकरीबन 5 माह की उम्र में अंडे देती हैं और साल में तकरीबन 250 से 300 अंडे देती हैं। कुड़कपन से पाक होती हैं। देही सतह पर मुर्गियों के लिए खुराक तैयार करने का तरीका। 10 किलोग्राम खुराक अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए घरेलू सतह पर तैयार की जा सकती है। नंबर 1, खुश्क रोटियां 6 किलो, खल बनोला 1 किलो, खल तोड़िया 1 किलो, कराय दाल मसूर मूंग चना आधा किलो, चोकर गंदम आधा किलो, बुझा हुआ चूना 1 पाव, पिसी हुई हड्डी 1 पाव, सब्ज चाड़ा आधा किलो। मंदरजा झैल अज्जा को एक पतीले के अंदर डालकर मुनासिब पानी डालकर 1 घंटा भिगो कर रखें। फिर आग पर 15 से 20 मिनट तक के लिए पकाएं और खूब मिलाएं। इस दौरान आधी चटाक खुर्दनी नमक का भी इजाफा कर दें। जब नरम पेस्ट तैयार हो जाए तो उतार कर ठंडा करके मिट्टी के कनालियों के अंदर खुराक डालकर दही मुर्गियों को खिलाएं। यह खुराक तकरीबन 100 मुर्गियों की यौमिया जरूरत पूरी कर सकती है। मुर्गियों की फरोख्त। अगर देहात में देखा गया है कि घरों में मुर्गियों की पैदावार उम्र का ख्याल नहीं रखा जाता, मुर्गी की उम्र हवा कितनी ज्यादा हो जाए उसकी हिफाजत को निगाह में रखा नहीं जाता। मुर्गी की उम्र जब तकरीबन 1.5 साल हो जाए तो ज़बह करके खा लेना चाहिए या फरोख्त कर देना चाहिए।
मुर्गियों की बीमारियां। नंबर 1 पे आती है रानी खेत। देहात में मामूली मौसमी तब्दीली से रानी खेत का मर्द फूटकर अनाफाना बेशुमार मुर्गियों की हलाकत का बाइस बनता है, जिससे मुर्गबान हजरात की हौसला शिकनी होती है। इस पर काबू पाने से मुर्गियों को हलाकत से बचाया जा सकता है। मुर्दा परिंदे। देहात में देखने में आया है कि जो परिंदे मर्द रानी खेत से मर जाते हैं उन्हें बाहर गंदगी के ढेर पर फेंक दिया जाता है, जिसे कुत्ते बिल्लियां उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं। इससे बीमारी फैलाने का बाइस बनते हैं। यही वजह है कि गाँव में किसी एक घर में रानी खेत मर्ज का हमला पूरे देहात में वबा की सूरत इख्तियार कर जाता है। जो मुर्गियां इस मर्ज से मर जाएं उन्हें गड़ा खोद कर दबा देना चाहिए। मर्ज से बचाव। इस मर्ज से बचाव के लिए फांसी टीके लगवाने पर सख्ती से अमल किया जाए। ये टीके तकरीबन हर यूनियन काउंसिल पर वाकई वेटरनरी सेंटर के अमला से लगवाए जा सकते हैं। इन टीकों का प्रोग्राम ये है। शेड्यूल। पहला टीका तफसील। ये टीका 5 से 7 दिन की उम्र तक लगवाना चाहिए। टीका 1000 खुराक के एक एम्पोल में 5 मिलीलीटर सीसी कशीदा शुदा पानी डालकर तैयार किया जा सकता है, जिसको चूजे की एक आंख में एक कतरा डालकर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा टीका। ये टीका 3 से 4 हफ्ते की उम्र में लगाया जाए। टीका 100 खुराक के एम्पोल में 50 मिलीलीटर सीसी कशीदा शुदा ठंडा पानी मिलाकर खूब हल कर लिया जाए। फिर इस महलूल का निस्फ मिलीलीटर सीसी फी परिंदा ज़ीरे जिल्द टीका लगाया जाए। तीसरा टीका। ये टीका 3 माह की उम्र में लगाया जाए। चौथा टीका। ये टीका 5 माह की उम्र में लगाया जाए। टीका की तैयारी तीसरे टीके जैसी करनी है। इसमें 1 मिलीलीटर सीसी फी मुर्गी ज़ेरे जिल्द या अंदरूनी गोश्त टीका लगाएं और फिर हर 2 माह बाद दोहराया जाए। नंबर 2 पे आता है बीमारियों में मुतद्दी ज़ुकाम। अलामात। नंबर 1 मुंह और चेहरे पर सोजिश, आंखों की सोजिश। नंबर 2 छींकें आना, आंखों से पानी बहना। नंबर 3 दाना पानी की खपत में कमी। नंबर 4 वजन और अंडों की पैदावार में कमी। नंबर 5 सांस लेने में दुश्वारी, सांस के साथ आवाज आना। इलाज। मुख्तलिफ सल्फा अद्वियात और एंटीबायोटिक अद्वियात इलाज के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिनमें ट्राइबर्सन और ऑक्सीटेरासाइक्लिन का इस्तेमाल होता है। साइलिन और कोल्स्टेन का इस्तेमाल ज्यादा मौसर साबित होता है। 3 परिंदों की चीचक। अलामात। नंबर 1 खुश्की या जिल्दी चीचक की सूरत में जिल्द के 2 हिस्से कलगी, जहाँ पर बाल नहीं होते वहाँ सोजिश हो जाती है और दाने नमूदार होते हैं। नंबर 2 गले की चीचक में मुंह की अंदरूनी सतह और हलक में छाले बन जाते हैं। ये छाले सफेद रंग के बड़े हुए गैर शफाफ दानों की मानिंद नजर आते हैं। इनका इलाज। मर्ज का कोई महसूस इलाज नहीं, ताहम दूसरे जरासीम को रोकने के लिए वसी दायरा असर रखने वाली एंटीबायोटिक अद्वियात का 3 से 5 दिन तक इस्तेमाल करवाना चाहिए। बैरूनी तौर पर मुतासरा हिस्सों पर टिंक्चर आयोडीन का इस्तेमाल भी करवाना चाहिए। खूनी पेचिश। अलामात। परिंदे एक जगह इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं, आंखें बंद करके पार और कंधे झुका कर रखते हैं। नंबर 2 चूजे की भूख खत्म हो जाती है लेकिन पोटा बड़ा रहता है, वजन कम हो जाता है और पतले दस्त लग जाते हैं। नंबर 3 दस्तों में खून के मेले इस बीमारी की खास अलामत है, इसी वजह से इसको खूनी पेचिश कहते हैं। आमतौर पर इसको कॉक्सी भी कहते हैं। इसकी रोकथाम। फार्म पर सफाई का अच्छा इंतजाम हो, परिंदों की तादाद जगह के मुताबिक हो, गुंजाइश से ज्यादा परिंदे बुरादा जल्द गीला कर देने की वजह से बीमारी का सबब बन जाते हैं। बुरादा खुश रखें। विटामिन B1 का इस्तेमाल करें, यह भी बीमारी के फैलने में मदद देता है। और दिन में 1 मरतबा बुरादे को पंची जरूर मारें। हिफाजती टीकों का शेड्यूल। उम्र, वैक्सीन और लगाने का तरीका। उम्र 1 दिन IDH120 स्प्रे या आंख में कतरा। उम्र 5 दिन रानी खेत H9 VRI प्लस रानी खेत लासोटा ज़ीरे जिल्द प्लस आंख में कतरा। 9 दिन गम्बोरो इंटरमीडिएट प्लस गम्बोरो ब्लड आंख में कतरा पीने के पानी में प्लस ज़ीरे जिल्द। नंबर 16 गम्बोरो प्लस आंख में कतरा पीने के पानी में। 19 दिन आब कल्ब PRI ज़ीरे जिल्द। 23 दिन रानी खेत VRI आंख में कतरा ज़ीरे जिल्द। 28 दिन IBBH120 आंख में कतरा या पानी पीने के लिए। 35 दिन फाउल पॉक्स विंग वेब मतलब उसको पड़ू में लगाना है। 55 दिन रानी खेत प्लस H9 ऑयल सेड VRI प्लस रानी खेत और VRI ज़ीर जिल्द प्लस आंख में कतरा। 95 दिन रानी खेत प्लस IB 1 ड्रॉप सिंड्रोम ज़ीर जिल्द या गोश्त में। 96 दिन रानी खेत प्लस IB लाइफ पीने के पानी में। वीडियो के अख्ताम पे नोट, हर 2 माह बाद रानी खेत की वैक्सीन दोबारा करें।
نمبر 2، مختلف علاقوں میں بیماری کی نوعیت کے لحاظ سے حفاظتی ٹیکوں کے شیڈول میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ ادویات کی فراہمی، تمام ادویات برائے مرغ بانی آپ اپنے ضلعی لائف سٹاک کے آفس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آج کا ہمارا یہ عنوان مرغ بانی کے متعلق جتنی بھی معلومات آپ کو دی گئی ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل ٹیک فارمنگ کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل والے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری نئی ویڈیو جلد از جلد آتی رہیں، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔